यहाँ पे देखें कि वो क्या कहती है। A critique of Gabriel. Introduction. The poem, in its simplicity, tells us that the world is devastated and the people have become corrupt. So, the inspiration of Christ is important for the salvation of humanity. A new faith is necessitated for the survival of the world. And Greenridge, being a poet, spent most of her time reading poetry. When she reads poetry with his time, new ideas emerges in her mind, those which never emerged before. The angels appear, which show sympathy towards her. She experiences various troubles of 20th century and finally finds their solutions in the divine inspiration through the messenger Gabriel sent by Christ according to their faith as salvation for humanity in confused time. एंड रीन रिच जो है बीइंग अ पोएट, वो जो है अपनी मोस्ट ऑफ हर टाइम रीडिंग, उसका जो टाइम होता है वो रीडिंग पोइट्री में गुजरता है और वो बहुत सी पोइट्री रीड करती है। न्यू आइडियाज उसके माइंड में इमर्ज होते हैं विच नेवर इमर्ज बिफोर, जो कि उसने पहले कभी नहीं। और एंजल जो है वो अपीयर होता है विच शो सिंपैथी टू बर्ड्स हर। और एक्सपीरियंस जो है वो वेरियस एक्सपीरियंसेस या ट्रबल्स हैं 20th सेंचुरी की, और वो क्या उनका solution find out करती है in the divine inspiration through the message of Gabriel sent by Christ according to their faith। ठीक है, according to their faith क्या है, गब्रियल की तरफ से एक मैसेज आया है as of salvation for humanity in confused time। Though the poem has religious significance, the poem is also to be purely on love foundation। Gabriel is poet's previous lover, which for a reason left her but has come back to join her। The various themes of poem can be studied as under डेवलपमेंट ऑफ थॉट देख लेते हैं। गब्रियल एज सिंबल ऑफ रिविलेशन एंड सैल्वेशन। गब्रियल इज ट्रेडिशनल नोन एज एंजल ऑफ रिविलेशन। ठीक है, एंजल ऑफ रिविलेशन वही हमें, हमारा ईमान है कि हजरत जब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो वही लाते थे किसके ऊपर, नबियों के ऊपर। who brought revelation to all prophets in the world। In the poem, Gabriel does stand for revelation, but he also symbolizes Christ, who sends Gabriel to poet for salvation, the poet who in turn stands for humanity। Humanity in the form of poet has taken many terms. The two great word wars had shattered the values cherished by 19th century and even the previous centuries। और ये जो टू ग्रेट वॉर्स हैं वो उनको शटर, इन्होंने शटर कर दिया उन वैल्यूज को जो कि कभी 19th सेंचुरी का हिस्सा हुआ करती थी या प्रीवियस सेंचुरीज का हिस्सा होती थी। क्योंकि ये जितनी भी वॉर्स लड़ी गई हैं ऑब्वियसली मटीरियलिस्टिक जो है अप्रोचेस के लिए ही लड़ी गई हैं, उसके पीछे मटीरियलिस्टिक ही एम्स एंड एम्बिशंस थे। These wars devastated the structure of world। There is anarchy ruling the world। एक एनार्की थी, एक वायलेंस थी जो कि रूल कर गई इस दुनिया को। इट सीम्स नो गुडनेस इज लेफ्ट इन द वर्ल्ड एज द पोएट क्राइज इन बिगिनिंग, देयर इज नो एंजल येट, हियर कम्स एन एंजल वन। ठीक है, वो कहती है कि अब तो यहाँ पे कोई एंजल रहा ही नहीं, लेकिन एंजल जैसा एक इंसान आया। अब यहाँ पे वो क्या कहती है कि एक एक्सप्लॉइटिव नेचर है इन द वर्ल्ड जो सरप्राइज करती है पोइट को कि अब इस 20th सेंचुरी ऑफ साइंस और मटीरियलिज्म में कोई एंजल नहीं है। और वो बड़ी हैरान होती है कि ये मेरी कमरे में एक एंजल कहाँ से आ गया। द एंजल बेयर अ यंग मैन फेस, इट इज Gabriel, who awaited by the poet for revelation। The poet has the faith in power of Christ that he could never have left the world in its inertia। ठीक है, और पोइट का एक फेथ है पावर ऑफ क्रिस्ट कि वो जो है कभी भी अपनी वर्ल्ड को नहीं छोड़ेगा इन इट्स इनर्शिया, बिकॉज ही इज बेनेवोलेंट प्रॉफिट, क्योंकि वो बहुत रहमदिल प्रॉफिट है। So he sent Gabriel as symbol of himself so that he may give the poet a message to renew the world once again in its reformer shape। But the poet is not used to angels in this materialistic age, so she is terrified when she sees the angel। वो बड़ा डर जाती है, वो कहती but he does not say that his message drenches his body। वो कुछ कहता तो बट ही उसने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जो जीसस क्रिस्ट का जो मैसेज है उसने उसकी बॉडी को ड्रेंच किया हो, यानी कि वही जो एक फरिश्ता नुमा इंसान है जो कि आज 20th सेंचुरी का इंसान है, उसका तो हमारी तो बॉडी भी ड्रेंच नहीं होती कुरान की वर्सेस पढ़ के। ना हमें रोना आता है ना हमारी बॉडीज, हम कैसे हम पढ़ा करते थे भाई, वो हुक्म आता था तो साहबा कराम अपने उनके तरीके ही चेंज हो जाते थे। एक हम हैं पढ़ के, और फेसबुक भरा पड़ा है, व्हाट्सएप पे डेली के इतने मैसेजेस आते हैं, हमारे दिल हैं कि बदलते ही कोई नहीं है। तो वो कहता है कि ही हैड वांट टू किल मी फॉर यूजिंग वर्ड्स टू नेम हिम। ठीक है, और वो मुझ पे डोमिनेट करना चाहता था और यूजिंग वर्ड्स टू नेम हिम, जो कि मैं उसको मतलब अपने उन नामों से जो कि मैं टू नेम हिम जो कि उसके नाम थे, यानी कि वो अपने
फरिश्ता सिर्फ नामों के थ्रू, जो कि हमने उसको फरिश्ता ही कहा हुआ था। देखें, बाज लोग होते हैं, मैं आपको सही बताऊं, दुनिया में बड़े अजीब अजीब लोग होते हैं बेटा। और बाज लोग, मैं कहती हूँ अल्लाह माफ़ी करे, कि एक खोल चढ़ा के ना अगले बंदे को धोखा देते हैं। और इसमें लीडर्स, टीचर्स और इस तरह की कम्युनिटी जो नीचे वालों को मिसगाइड करती है, ठीक है, अजीब अजीब प्रोपेगेंडास में इन्वॉल्व कर लेते हैं, लीडर्स भी और टीचर्स भी, ठीक है। और एंड दैट इज द डिलेमा ऑफ आवर सोसाइटी, ठीक है। टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को यूज़ करते हैं और लीडर्स अपने फॉलोअर्स को यूज़ करते हैं। और सेम इज़ द केस विद द रिलीजियस सेक्ट्स, ठीक है। जो रिलीजन में जो ये सड़कों पे टायर जलाए जाते हैं, व्हाट इज़ दिस? उनके जो नेम्स होते हैं उसके पीछे लोग मरने खपने को तैयार हो जाते हैं। लोग ये नहीं देखते कि ये चीज़ ठीक है कि गलत है। वो ये कहते हैं क्योंकि भाई ये मैं इसका मुर्शिद हूँ, मैं इसका फॉलोअर हूँ, दैट्स वाई वो जो भी करेगा सर आंखों पे, वो जो भी कहेगा सर आंखों पे, ठीक है। तो बेटा इसको कहते हैं शख्सियत परस्ती, और ये हराम है। इस्लाम में ये चीज़ हराम है। हम शख्सियत परस्ती भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक छुपा शिर्क है कि आप अल्लाह को छोड़ के एक बंदा वो सही करे या गलत करे, आप उसको फजूल में फॉलो कर रहे हो। तो एटलीस्ट आपको अल्लाह ने अकल दी है, एटलीस्ट जज तो करें, ये बंदा जो मुझे कह भी रहा है वो सही भी कह रहा है कि नहीं कह रहा। अगर वो मुझे वायलेंस की तरफ लेके जा रहा है तो वाई ही इज डूइंग सो। तो ये सारी चीज़ें बेटा ज़रूर देखा करें। तो दिस शोज दैट द पोइटर्स, ये नवाज शरीफ इमरान खान की दुनिया नहीं है, ये अल्लाह की दुनिया है, ठीक है। नवाज शरीफ इमरान खान के पीछे नहीं लड़ना, ना ही रिलीजन के पीछे लड़ना है, ठीक है। तो वो अपने नामों के थ्रू ये सारी चीज़ें जो है दुनिया में वायलेंस फैलाती हैं, कि वो पहले एक नाम होता है, फिर शोहरत हो जाती है, फिर इंसान शोहरत के पीछे भागना शुरू कर देता है, पैसा आता है और पैसा चाहिए, शोहरत आई और शोहरत चाहिए। तो इन दो चीज़ों के पीछे ना, ये जो ऊपर चला जाता है ना, थोड़ा मशहूर हो जाता है जो तबका, ये बेटा नीचे वालों को बड़ा बर्बाद करता है, यूज़ करता है उनको, एंड दैट इज़ द रॉन्ग थिंग। और हम लोग भी बड़े मज़े से यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग, इससे थोड़ा सा बचे। फिर उसके बाद वो कहते हैं दिस शोज दैट द पोएटेस हैज नो टच ऑफ स्पिरिचुअलिटी, शी इज ऑक्युपाइड विद ऑल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड बट शी इज स्पिरिचुअली होलो। व्हेन द पोएट एटीट्यूड टुवर्ड गब्रियल इज कैजुअल एज शी सेज आई गेट योर मैसेज गब्रियल, आई जस्ट विल यू स्टे लुकिंग स्ट्रेट एट मी। वो कहती मुझे अब तुम्हारा मैसेज मिल गया, अब क्या तुम यहीं पे मुझे देखते रहोगे? दिस इज नॉट यूजली द बिहेवियर ऑफ मैन बिफोर एन एंजल इफ बिकम्स विजिबल, the angel Gabriel being a symbol of truth and revelation and comes with a definite message to convey to humanity, but humanity is not even ready to listen or act upon what he might say. लेकिन एक्चुअली ह्यूमैनिटी जो है वो रेडी नहीं है कि वो लिसन करे और एक्ट अपॉन करे व्हाट ही माइट से। आप ये देखें, हमारे दिल इतने मुर्दा हो गए हैं। अभी एक मीम आ जाएगी ना, मैं थोड़ी देर रुकूंगी, मैं उस पूरी मीम को देखूंगी, उसके बाद मैंने उसको फॉरवर्ड करना एंड देन आई विल वेट मुझे व्हाट्सएप पे कितने मैसेजेस आते हैं। सेम इज द केस ऑन फेसबुक। आई विल इंडल्ज माई सेल्फ इन यूजलेस एक्टिविटीज, लेकिन जब हमें ये कहा जाता है कि मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छी कोट आ रही होती है या इस तरह की, तो हम फटाफट उसको गुजार देते हैं, ठीक है। या फिर कुरान के वर्सेस या एनीथिंग इस तरह की पढ़ी जाती है तो हमारे दिलों पे कोई असर नहीं होता। लेकिन एक मीम के ऊपर, बिकॉज हमारे दिल मुर्दा हो गया ना, हमें हंसना, बोलना, कह के मारना और ये वर्डली जो मतलब थोड़ी देर का जो प्लेजर होता है, कितनी देर का प्लेजर होता है आप खुद सोचें, जस्ट फॉर अ सेकेंड और 2 सेकेंड्स और 5 सेकेंड, ये बेटा ये प्लेजर कोई प्लेजर नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो यहाँ पे बता रही है कि पोइट सिंबलाइजिंग ह्यूमैनिटी इज इवन डाउटफुल ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द एंजल। आज जो है ह्यूमैनिटी वो डाउट में पड़ गई है, ठीक है। कि देखें बेटा, जब लोगों का रिलीजन के ऊपर से एतबार उड़ जाता है ना, वहीं से वो सोसाइटी बर्बाद होती है। बात ये नहीं है कि अब वो मुसलमान है या क्रिश्चियन है या यहूदी है एंड सो ऑन। हर जो रिलीजन है ना वो हमेशा एक पीस का पैगाम देता है, एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन्स, ठीक है। हमें हर बंदे की रिस्पेक्ट करनी है। अब आप हर रिलीजन को उठा के देख लें, सबने अपने रिलीजन्स को छोड़ दिया, ठीक है। तो जब फेथ लॉस्ट हो जाता है, क्योंकि लॉस्ट जनरेशन है हम, that's why everything is lost and found love है उसकी थीम है। द पोएम हैज अनदर स्ट्रैंड,
apart from the religious connotation meanings को कहते हैं, symbolism को कहते हैं. The second strand of poem is lost and found love. Gabriel also symbolizes lost love which is ultimately found. The meeting between the poet and her previous lover start in the following manner. Here comes an angel with a man's face young, shut of the dark side of the moon, turning to me and saying, I am the plum serpent, the beast, the fangs of fire, and a gentle heart. अब वो यहाँ पे वही कहता है ना कि भाई यहाँ पे क्या है, एक शख्स आता है एक यंग मैन फेस में बड़ाई, और वो क्या है, उसके फैंग्स ऑफ फायर और जेंटल हार्ट है. शी रिकॉग्नाइजेस दैट he is her past lover who left her and now has become the shape of an angel. Thought the inner reality of lover is perceived by the poet, though sorry though the inner reality of lover is perceived by the poet, and she does understand how poisonous he was and could be. The Gabriel, symbolizing a handsome man who comes to meet his beloved with inner bad intention or bad past, whom he left. The poet is so terrified, maybe her past experience with the lover, when she says that he had wanted to kill me for using words to name him. The poets want to remain busy in her studies and contemplation of the world affair and politics and social tension rather than get involved into love affair again because he previously deceived her. As she says, I sit in the bare apartment reading word stream past me poetry, 20th century rivers. Apart from his newborn love for the poet, the so-called angel is not behaving in the manner that a lover should. Importance of communication could be denied in love, but this lover is silent. ठीक है, अब जो है कम्युनिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि बात करने की जो इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन की, वो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता मोहब्बत में. लेकिन अब जो है वो लवर साइलेंट है कि वो फिर कहती है कि एंजल जो है वो बेरली दैट इज स्पीकिंग टू मी, सर्टेनली बिकॉज ऑफ 20th century confused times and lack of assurance on part of lover. The poet cannot be blamed, and especially she has been previously deceived by him or someone like him, and she has lost faith in love. She finds all men equal. She says, he stood or someone like him. Salutations in golden leaf ribboning from his lips. Today again the hair streams to his shoulder. और उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो चार्मिंग है एज इट वॉज बिफोर. द वर्ड गब्रियल appears satirical and ironical because he has come with a motive perhaps of sexual nature rather than true love. The poet also feels mixed feelings of joy and terror rather than speaking or communicating love. फिर वो आगे कहती है कि we glance miserably across the room at each other. It's true there are moments closer and closer together when words stick in my throat. The art of love, the art of word. ये वर्ड्स जो है वो उसके थ्रॉट में स्टिक होके रह गए. द आर्ट ऑफ लव, यानी कि ये जो हिपोक्रिटिकल लव है और ये हिपोक्रिटिकल वर्ड्स हैं. द आर्ट ऑफ वर्ड. ठीक है, तो इंसान जो है हिपोक्रिटिकली शो करता है जस्ट टेंडरनेस, जस्ट लव, और हिपोक्रिटिकली ही वो वर्ड्स यूज करता है. वो कहते हैं कि किसी इंसान को जानना हो ना, उसको फ्रीडम दे दो, फ्री छोड़ दो, पता चल जाएगा वो क्या है. ठीक है, और असल में इंसान का पता चलता है जब आप अकेले में होते हैं. ठीक है, जब आप उससे कुछ अरसा इंटरेक्शन करते हैं. ठीक है, तो पब्लिकली और पीछे लोगों के हमेशा टू फेस्ड ही होते हैं. I get your message, Gabriel. Just will you stay looking straight at me a while longer? At such time, the art of love is important because mere facial expression perhaps does not work. But in the present situation, the Gabriel attitude seems based on sexual motive rather than real love. He has become he has come back with motive of establishing physical relationship, and the poet understands its game and satirically says, I get your message, Gabriel. Just will you stay looking straight at me a while longer? The poet understands the motives of man, and she rejects seemingly beautiful and inwardly serpent-like Gabriel. He is a fake lover and not a true Gabriel who believes in the revelations and truth. Conclusion क्या है? Gabriel is thought-provoking poem which highlights current tension in 20th century and the importance of truth and revelation for the salvation of downtrodden humanity. Gabriel becomes before us a symbol of divinity as well as a secular symbol of a young man with a fantastic expression on the face wrapped with inward lust. Technically, Gabriel is superior poem which has used the image of Gabriel beautifully. It's relevant to changing condition of the world. The poem is based on socio-political background, though the atmosphere is that of a love poetry.
The poem is remarkable for its ironical images. Taken in view the feminism of those days, the poem seems fit to be studied in the light of rich passion for the liberation of the women. और टेकन इन द व्यू, उस दौर की जो फेमिनिज्म थी वो क्या थी, उसमें उसके हिसाब से पोएम जो है वो फिट बैठती है टू बी स्टडीड इन द लाइट ऑफ रिच पैशन फॉर द लिबरेशन ऑफ विमेन। ठीक है, उसका एक पैशन था कि औरत जो है वो आज़ाद जिए। ठीक हो गया। तो ये था जनाब आज आपका जो लेसन था गब्रियल का। तो थीम ऑफ डिसेप्शन, थीम ऑफ लॉस्ट जनरेशन, और क्या क्या बोला था अभी, लॉस्ट इन फाइंड लव, पैसिमिस्टिक टोन है। ठीक है, हिपोक्रेसी के बारे में वो बात करती है, हिपोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। लॉस्ट फेथ के बारे में वो बात कर रही है, लॉस्ट फेथ इन 20th सेंचुरी। ठीक है, और बाकी यही कि मैन की नेचर, द चेंजिंग नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, contrasting nature of human being, just like मतलब too much worst and too much good। जितना वो टेंडर है उतना ब्लैक भी है। ठीक है, टेंडर हार्टेड है तो उतना इनवर्डली वो ब्लैक भी है। ही इज जस्ट अ सर्पेंट एंड एज वेल एज ब्लैक। ठीक है, वो टेंडर हार्ट भी है, उसका जेंटल हार्ट भी है, और वो सर्पेंट भी है। तो इस तरह की उसने ह्यूमन नेचर, द कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऑफ द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग। कभी वो मोहब्बत करता है, कभी वो धोखा देता है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, हाँ एक और चीज, चेंजिंग टाइम्स, थीम ऑफ चेंजिंग टाइम्स। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, वाकयात बदल जाते हैं, और लोग बदल जाते हैं। ठीक है, हो सकता है आपकी जिंदगी में लोग अच्छे हो जाएं, जो बुरे होते हैं ना वो बाज़ औक़ात अच्छे भी हो जाते हैं। इंसान को बस होपफुल होना चाहिए। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम हमें इससे मैम क्या मॉरल अगर लेसन क्योंकि मिल रहा है? एक मिनट, हमारा एक सदफ, मिनट सदफ बोलिए। मैम, इस पोइम से हमें क्या मॉरल लेसन दे रही है कोई? मोरल लेसन पोइट्री हमें ये दे रही है कि देखिए, हमने हमारा सबसे पहली चीज कि इफ फेथ लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट। ठीक है, आपका जो फेथ होता है ना एक्चुअली वो आपको हमेशा अपराइट रखता है कि ये चीज अल्लाह को पसंद है कर लो, ये चीज नहीं पसंद छोड़ दो। दैट इज वेरी इजी टू लिव। मैं यकीन करें बहुत आसान है इस तरह से। जब आप दुनिया के पीछे, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे, फेथ वर्सेस आप इसे समझ लें मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, ये भी एक इसकी थीम है कि इफ फेथ लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट, सबसे पहली चीज। दूसरी, क्योंकि फेथ ही लॉस्ट हो गया है तो इंसान के ऊपर ना तो बाइबलिकल कॉन्टेक्स्ट का असर हो रहा है, ना जीसस क्रिस्ट के मैसेजेस का असर हो रहा है, ना रिविलेशन ऑफ गब्रियल का असर हो रहा है। क्यों? बिकॉज हम अपने इतना ज़्यादा सख्त दिल हो गए हैं, पत्थर दिल हो गए हैं कि अब हम पे ये बातें, ये अच्छी अच्छी बातें हमें समझ नहीं आती। ठीक है, और हमें ये लगता है ये पुराने वक्तों की बातें हैं, ये पुराने लोग ही जाने, हमें क्या। ठीक, और फिर उसके बाद जो लवर और बिलव्ड रिलेशनशिप है कि उसके अंदर जो डिसेप्शन है वो शो की गई है। आज के लोगों का डिलेमा शो किया गया है कि लोग किस तरीके से डिसीव करते हैं हमें। ठीक है, और यकीन जाने ऐसा होता है बाज़ औक़ात लोग, मैं पता है बहुत अवॉइड करती हूँ किसी से हेल्प लेना, क्योंकि मेरा ये मानना है कि दुनिया के अंदर ना बेटा कोई चीज़ फ्री नहीं है। ऑल दो मैं सब, मतलब आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबको हेल्प आउट कर दूँ, लेकिन मैं खुद किसी की हेल्प नहीं करती, सॉरी हेल्प लेती नहीं हूँ मैं किसी से। मतलब मेरे अंदर ना एक कोई खुददारी वाला वो है। माई फादर ऑलवेज गिव मी 2 रुपीज़ पर डे। ठीक है, 2 रुपीज़ मिलते थे हमें छोटे होते हुए। अब्बू भूल जाते थे ना, मैं मांगती नहीं थी कि जब याद आएंगे तो फिर मैं देंगे। तो बेटा कभी किसी से ना, मैं एक चीज़ बताऊँ, ये कभी किसी से हेल्प ना मांगिएगा। फिर ये लोग ना बाद में इंसान को उस हेल्प और उस एहसान के पीछे ना ब्लैकमेल बड़ा करते हैं। और हम जैसे जो लोग होते हैं ना, जो कि हर बंदे का छोटा सा भी एहसान उसको सर आंखों पे बिठा लेते हैं, यकीन करें हम लोग ऐसे लोगों के हाथों मारे जाते हैं। ये लोग तो हेल्प किसी और ही मकसद के लिए कर रहे होते हैं कि भाई कभी ना कभी इस बंदे को यूज करेंगे या सो ऑन। इस वजह से मतलब मेरा ये कहना है कि ये हेल्प के लिए किसी के पास ना जाए। अपने आप के ऊपर आपको नाज होना चाहिए एंड गो अहेड। ठीक है, और वो आपको एक ही चीज अपराइट रखती है, वो आपका फेथ होता है। ठीक है, तो जब इंसान के अंदर शिवरिंग खत्म हो गई, डर ही खत्म हो गया, वो मैसेज ही खत्म हो गया, तो फिर हर इंसान दूसरे को यूज करता है। और आज की दुनिया, यकीन करें, हम एक दफ़ा डिजिटल मार्केटिंग की मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की, तो सर लेक्चर दे रहे थे, बहुत अच्छा लेक्चर था। मैं वहाँ पे बैठी हुई थी और सर कहते हैं कि दुनिया के अंदर जो है ना,
नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, ही टोल्ड अस। सबको ही उन्होंने बताया क्योंकि वो मार्केटिंग पे लेक्चर हो रहा था। तो और मैं इस तरह के ना काफ़ी कोर्सेज करती रहती हूँ, शॉर्ट कोर्सेज मैंने काफ़ी किया हुआ है, तो वो स्किल्स के लिए ना, स्किल्स एनहांस करने के लिए। तो वो उन्होंने एक बात की थी, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। अगर कोई आपकी फ्री में भी कर रहा है ना, जिसे हम हेल्प कह रहे होते हैं, यकीन करें उसके पीछे कोई ना कोई इंसेंटिव होता है। ठीक है, तो इस वजह से बेहतर है कि खुद कर लें। आपको अल्लाह ताला ने इतनी सारी किताबें दी हैं, रिसोर्सेज दिए हैं, यूट्यूब आपके सामने है। ये जो आजकल स्पेशली जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं ना, हर ट्यूटर को इनबॉक्स कर देते हैं, ये भी गलत कर रहे हैं आज के स्टूडेंट्स। क्या आज के स्टूडेंट को अपने ऊपर नाज नहीं रहा, मान नहीं है आप लोगों को अपने आप? ठीक है, ये भी गलत है, मुझे अच्छा नहीं लगता लिटरली, यकीन करें। और फिर फाइनली क्या होता है, हमें इनबॉक्स कर देते हैं फलाना ट्यूटर आपके खिलाफ ऐसे कर रहा है। गलत है ना, आप क्यों एक वायलेशन फैला रहे हो? कह रहे हैं, कहने दें, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, हमें बता देते हैं आके कि मैम आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। वाई, क्यों बता रहे हैं? अगर आपको वो चीज़ बुरी लग रही है छोड़ दें फिर ग्रुप, या फिर आप हमें बताएं ना। ठीक, तो ये मुझे आज के दौर में ये बात समझ नहीं आती ना, तो कि आज के स्टूडेंट को क्या अपने ऊपर फेथ ख़त्म हो गया हमारा अपने ऊपर, कि हम हर ट्यूटर को इनबॉक्स कर देते हैं, फिर उसको प्राइवेटली इनबॉक्स जाके हम उससे बात करते हैं चाहे, और फिर हम ये भी नहीं देखते ये मेल एंड फीमेल है। तो और एक और चीज़ बेटा मैं आपको बता दूं, हदीस में यही है ना, एक मर्द और एक औरत जब अकेले होते हैं तो तीसरा उनमें शैतान होता है। जब आप इनबॉक्स करते हैं एक मेल ट्यूटर को, तो आप दोनों क्या अकेले नहीं होते? ठीक है, अब तीसरा तो शैतान आएगा। ठीक है, तो बेटा बी केयरफुल अबाउट दैट। जिसको भी आपने मैसेज करना ना, पब्लिकली कर दें, कमेंट बॉक्स में कर दें, कमेंट सेक्शन में कर दें, लेकिन प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट स्पेशली टू लेडीज के इनबॉक्स में ना जाएं। बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, और बच्चियों की जो इज्जतें होती हैं ना बेटा, ये ऐसे ही होती हैं, ख्याल किया करें ये चीज़ें। तो ये है जनाब, इफ फेथ लॉस्ट एवरीथिंग। इसकी सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस, सबसे पहले टाइटल की जस्टिफिकेशन, उसके बाद जो है मेटाफोरिकली उसने किस तरीके से गब्रियल को कंपेयर किया है विद द मैन, ठीक है, ह्यूमन नेचर के साथ, कि ह्यूमन जो है वो गब्रियल जैसा बनने की कोशिश करता है, लेकिन वो गब्रियल है नहीं। और हम लोगों को ज़रा सा कोई हमारी ज़िंदगी में क्या आ जाता है, हम उसको फरिश्ता ही समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है, इंसान इंसान ही है, वो खता का पुतला है। ठीक है, पहली बात तो ये उसने मेटाफोरिकली गब्रियल और ह्यूमन नेचर को आपस में कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया है। मैन वो सब कुछ है जो गब्रियल नहीं है, और गब्रियल वो सब कुछ है जो मैन नहीं है। थीम ऑफ कंपेयर एंड कंट्रास्ट तो इसके अंदर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई है। फिर उसने थ्रू इमेजेस, फिर इमोशंस उसने इमोशंस बहुत ज्यादा हाईलाइट किए हैं इसके अंदर। ठीक है, लाइक फेशियल एक्सप्रेशंस है, इमोशंस है, वो वर्ड्स की बात करती है, वो फीलिंग्स की बात करती है। तो थ्रू इमेजेस वो अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करने की खुद भी कोशिश कर रही है, और हमें भी कन्वे कर रही है कि ये जो दुनिया है ये बड़ी धोखेबाज है, ये बड़ी डिसिसिव है। ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे शो कर रही है। और बाकी वही है, सिंबलाइज क्या क्या करता है, जैसे मैं आपको एक एक वर्ड अंडरलाइन कर करके बता रही थी कि ये इसकी सिंबलिज्म है। देखिए, बड़ा आसान तरीका बताऊं क्रिटिकल एप्रिसिएशन का। वेरी फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप उसके लिटरेरी टर्म्स के बारे में लिखें, सिंबलिज्म उसने कहाँ कहाँ यूज की है। ठीक है, उसके बाद आप एक जस्टिफिकेशन ऑफ टाइटल, then the symbolism, then ironically she has portrayed the image of Gabriel. One thing more, ठीक है, ironically she has portrayed the image of the Gabriel। ठीक है, उसने गब्रियल का इमेज जो है उसको पोर्ट्रे किया। और किसी का कोई क्वेश्चन? फिर रिलीजियस कॉनोटेशंस आपके सामने है। ठीक है, कॉनोटेटिव कॉनोटेशन आपको पता है, दैट इज ऑल्सो अ सिंबॉलिक टर्म, सॉरी लिटरेरी टर्म है, इसको भी फिगरेटिव लैंग्वेज कहेंगे। और कोई क्वेश्चन? एनीथिंग क्लास? मैम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बाद, टाइटल को जस्टिफाई करने के बाद, थीम के बाद, फिर उसके बाद इसकी लैंग्वेज को डिस्कस करने के बाद कंक्लूड। यस, उसके बाद कंक्लूड करें। थीम्स लिख लें, देखें इसमें, हाँ देखें, लव एंड लॉस्ट एंड लव, फाउंड लव हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया डिसेप्टिव वर्ल्ड हो गया, फिर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड हो गया, ये सारी चीजें। और फिर फाइनली आप कंक्लूड कर लें।
ठीक, मतलब एंड में लैंग्वेज के 2 पैराग्राफ्स बना ले। एक में आप सिंबलिज्म आप बताएं कि भाई उसने लिटरेरी फिगरेटिव लैंग्वेज बड़ा एक्यूरेटली यूज की है, फिर आप बताएं कि उसने आयरनी कहाँ यूज किया है, सिंबलिज्म कहाँ यूज किया है, कॉनोटेशंस कहाँ, रिलीजियस कॉनोटेशन इज आल्सो अ लिटरेरी टर्म। ठीक है, ये सारी चीजें आपने बतानी है। और एनीथिंग एल्स मैम हाँ जी हाँ जी टाइटल को कैसे करेंगे हम एक्सप्लेन? बेटा जो गब्रियल है दैट इज द टाइटल ऑफ द पोएम, और इसने आयरॉनिकली उसको, हमें ये लगा कि गब्रियल कोई फरिश्ते के ऊपर उसने पोएम लिखी होगी, लेकिन उसने इन आयरॉनिकली टाइटल लिखा है कि इंसान कोई फरिश्ता नहीं है। ठीक है, इंसान की डिसेप्टिव हाइपोक्रिटिकल नेचर है। हम किस दुनिया में नेक लोग ढूंढ रहे हैं भाई? ठीक है, खुद को बदल ले, ज्यादा बेहतर है, यहाँ पे गब्रियल नहीं मिल रहे। सही, और जब हम बदल जाएंगे हमें सारी दुनिया वैसी बदली हुई नजर आएगी। और मैम हम बस थीम को डिस्कस कर सकते हैं, मसलन स्टांजा बाय स्टांजा ना करें, जैसे डाइविंग इनटू द रैक है उसके 10 स्टांजास हैं तो बहुत लंबी हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, स्टैंजा बाय स्टैंजा नहीं करें। कल मुझे एक स्टूडेंट ने स्टैंजा बाय स्टैंजा शेयर की हुई थी, लेकिन बेटा स्टैंजा बाय स्टैंजा में इतने मार्क्स नहीं आते। जो अभी मैंने आपको पैटर्न बताया ना, एट फर्स्ट द इंट्रोडक्शन, देन आपका जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल, देन आपका थीम्स एलाबोरेट करनी होती है। वहां पे आपसे किसी ने समरी नहीं पूछनी कि फर्स्ट पैराग्राफ की समरी क्या थी, फिर उसके अंदर सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस क्या थी, सेकंड में क्या थी। हालांकि वो भी ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि वो ठीक नहीं है। आपको पता है एग्जाम्स के आप जरा पास्ट पेपर्स खोल के देखें, लिखा होगा द थीम्स इन एंड्रीन रिच पोइट्री, फिर आप क्या करेंगे? अगर आपने स्टैंजा बाय स्टैंजा एक पोएम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखी है और थीम्स आ जाती है एग्जाम्स में कि जी थीम्स आ गई एंड्रीन रिच की, फिर अब आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली आपको इसी वजह से बेटा एक पैटर्न बताया जाता है ताकि आपके बाकी पेपर्स कवर हो जाएं। तो थेमेटिकली आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशंस करनी है। ये स्टैंजा वाइज बेटा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ऑल तो मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है, लेकिन आप एक पेपर खोल के देखें जरा बेटा, वहां पे डायरेक्ट क्रिटिकल एप्रिसिएशन तो आई नहीं हुई ना, बहुत कम है, बहुत कम है। अभी जो लास्ट 3 ईयर्स से जो पेपर्स आ रहे हैं, सीधी सादी क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं आ रही। वो आएगी जी इमेजरी यूज्ड इन सिल्विया प्लाथ पोएम, थीम्स यूज्ड इन एंड्रीन रिच पोएट्री एंड सो ऑन, इस तरह के। फिर आप क्या करेंगे? आपने तो थीमेटिकली कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया ये जो पोएम्स को, फिर आप क्या करेंगे? तो इस वजह से बेटा कोशिश करें जो पैटर्न अभी आपको बताया ना कि थीमेटिकली एक्सप्लोर करें। देखें यहाँ पे मुझे ये जो वेबसाइट है ना जो मैंने आपको बताई है, इनकी मुझे यही चीज अच्छी लगती है कि ये थीमेटिकली एक्सप्लोर करते हैं पोएम को, सर जो है। ठीक है, तो आपने भी थीमेटिकली एक्सप्लोर करना है। और आपकी जो एनकेएम की बुक्स हैं उनको आज खोल के देखिएगा जो मैंने आपको लगवाई हुई हैं। उसके एंड में जब आप एनालिसिस पढ़ते हैं, आप देखें उसके आगे जब क्रिटिकल एप्रिसिएशन आती है, बाकायदा उन्होंने हेडलाइंस दी होती हैं थीम्स की, उन्होंने थीम्स बना बना के उसको एक्सप्लेन किया होता है। और किसी का कोई क्वेश्चन? एनीथिंग? मैम एक क्वेश्चन मेरे ज़हन में घूम रहा है। कल मैंने पेपर देखा ड्रामा का, हाँ, सारा पेपर बड़ी समझ आ गया। बस एक क्वेश्चन था कि डॉक्टर फॉस्टर्स का कि रियलिटी है या मिथ है। मैं उसको सॉल्व कर रही थी, दोनों चीजें। दोनों ही है ना, रियलिटी और मिथ दोनों है। एक्चुअली उसने ना इसके अंदर डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर एक्चुअली एक जिसे कहना चाहिए, डॉक्टर फॉस्टर्स एक फिक्टिशियस कैरेक्टर है। ठीक है, और इन अ केस उसने फॉस्टर्स को माइथोलॉजिकली किसके साथ, कौन से माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ उसने कंपेयर किया था हमारा? मेफिस्टोफेलिस के साथ, और एक नहीं पीछे जो नहीं नहीं एक नहीं एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर था वो जो मेज में फंस जाता है, वो इकारस, वो मोम के पर बनाता है और वो उड़ने की कोशिश करता है और सूरज तक जाने, और तो फिर इकारस के पर जल जाते हैं और वो नीचे समंदर में गिर जाता है। जी कोरस पोर्ट्रेट करता है फर्स्ट इंट्रोडक्शन में। एग्जैक्टली तो उसने कंपेयर किया था। एक्चुअली दैट इज अ फिक्टिशियस कैरेक्टर, और क्रिस्टोफर मार्लो ने बड़ा उसको मैं कहती हूँ बड़े जीनियस के साथ उसने उस कैरेक्टर को एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर का दर्जा दिया कि ही इज जस्ट लाइक द इकारस। ठीक है, इकारस जिसने मोम के पर बनाए थे और उसने उड़ने की कोशिश की थी, और फिर वो उसको अपने परों पे इतना, मैंने कहा ना एक बंदा इल्म हासिल करता है या स्टेटस हासिल कर लेता है, उसके बाद उसके अंदर एक लस्ट हो जाती है, मैं फटाफट मशहूर हो जाऊं, सारी दुनिया से आगे निकल जाऊं। तो उड़ते उड़ते वो समंदर के, वो ना सूरज के करीब पहुंच जाता है, तो उसके पर जल जाते हैं और वो फिर समंदर में गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है कैरस की। ठीक, तो ये सारी चीजें, तो एक्चुअली दैट वाज अ मिथ
ऑन द अदर हैंड जो मार्लो है उसने थ्रू द कैरेक्टर ऑफ द फॉस्टर्स उसने एक रियलिटी को शो किया है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई इंसान उसने बहुत ज्यादा पढ़ा है लिखा है और वो कोई बुराई नहीं कर सकता। क्रिस्टोफर मार्लो कहता है इट्स अ रियलिटी कि इंसान जो है वो प्रोन है टुवर्ड्स द इवल। ठीक है, वो प्रोन है टुवर्ड्स द इवल। ठीक है, तो जब उसके सामने बुराई आएगी वो तो करेगा। ठीक है, और मौत भी बेटा जब आती है तो ऐसे ही होता है, नेकी का फरिश्ता और जो शैतान होता है ना, फरिश्ता कोशिश कर रहा होता है ये बंदा जन्नत में चला जाए, दोनों हाजिर होते हैं उस टाइम। हम कहते हैं बंदा नजा की हालत में, वो नजा की हालत में नहीं होता, उसको जन्नत दोजख दोनों दिखाई जाती है एट दैट टाइम। ठीक है, लेकिन इंसान ने अपनी जैसी जिंदगी गुजारी होती है ना उसकी मौत भी वैसी होती है। अल्लाह करे कि सबको अल्लाह ईमान वाली मौत दे। ठीक है, तो हम नहीं कह सकते कि मतलब सारी उम्र, बाज़ औक़ात ऐसे ऐसे लोग होते हैं सारी उम्र ईमान की ज़िंदगी गुजार के एट द एंड पता नहीं ऐसा क्या करते हैं। बाज़ औक़ात सारी उम्र नमाजें वगैरह पढ़ने के बावजूद एट द एंड सुसाइड कर लेते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक ऐसा केस देखा और लिटरली मैं डेली जब मुझे वो याद आते हैं कि भाई उन्होंने इस तरह से डेथ मतलब सुसाइड किया है, तो मैं सोचती हूँ ये बंदा तो तहज्जुद गुजार था, ये बंदा तो नमाजें पढ़ता था, ये बंदा तो रोजे रखता था, ये तो एतकाफ में बैठता था, तो इसने ऐसे क्यों किया? तो मुझे बड़ा आई रियली मतलब मुझे वाकई शौक होता है कि इतना जब आप सारी उम्र अल्लाह के लिए गुजारते हो तो एट द एंड अपना ऐसा क्यों? तो ये चीज़ें होती हैं कि बेटा शैतान तो हर वक्त खड़ा है हमारे। शैतान ने तो अल्लाह को कहा है ना, या अल्लाह मैं भटकाऊंगा तेरे बंदों को, उसका वादा है अल्लाह के साथ। ठीक है, और शैतान हर उस रास्ता, हम समझते हैं हम ना अपनी अच्छाई और बुराई हमेशा बाउंड्री पर रखते हैं, स्पेशली जो बुराई होती है। ठीक है, हम हमेशा, हमारा ईमान बाउंड्री वाला ईमान है। जब आप बाउंड्री पे होंगे तो स्लिप होके, आपने कभी वो देखा टग ऑफ वॉर? टग ऑफ वॉर में जो दरमियान की लाइन होती है, अगर आप बाउंड्री लाइन पे है तो चांसेस हैं आप हार जाएंगे। ठीक है, और दूसरी पार्टी जीतेगी क्योंकि आप बाउंड्री लाइन पे आ गए। इसी तरीके से हमारा ईमान भी बाउंड्री लाइन का है। 2 मिनट लगते हैं हमारा ईमान जाया होने में। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे बेटा। तो शैतान हर उस रास्ते पे बैठा है जो जन्नत की तरफ जाता है, हर उस रास्ते पे। छोटा दुश्मन नहीं है, उसने हजरत आदम और हजरत अम्मा हवा जो कि नबी थे उनको जन्नत से निकलवा दिया था। हम क्या चीज़ है? ठीक है, तो हमने फाइट कैसे करना है? हमने वहाँ इफ फेथ लॉस्ट एवरीथिंग लॉस्ट। डॉक्टर फॉस्टर्स डिविनिटी में जो है मजहबियत में उसने डॉक्टरी की डिग्री ली थी, लेकिन क्या हुआ कि उसकी जो ख्वाहिशात थी वो उनको ओवरकम नहीं कर सका। इंसान अब जब अपने नफ्स का गुलाम हो जाता है ना तो बेटा फिर वो इसी तरह होता है जैसे कि डॉक्टर फॉस्टर्स है। और ऐसे कई लोग आपको दुनिया में मिलेंगे। हम सोच रहे होते हैं यार पीएचडी है, एमफिल है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, पता नहीं कितना नेक होगा, वो भी गब्रियल की तरह ही होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो ये था उसके अंदर कि रियलिटी में जो रेनेसेंस मैन है उसके अंदर लस्ट फॉर नॉलेज है, लस्ट फॉर पावर है, लस्ट फॉर डिस्कवरी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है डॉक्टर फॉस्टर्स एज अ मिथ। ठीक है, उसको आप लिखें इंट्रो मतलब थीसिस एंड देन एंटी थीसिस। ठीक, उसमें आप आर्गुमेंटेशन दें, फिर उसके बाद आप डी आर्गुमेंटेट करें उसको, मतलब उसका थीसिस लिखें फिर आर्गुमेंटेशन। एंटी थीसिस क्या था कि वो रियलिटी थी। ठीक है, यस दैट इज ऑल्सो अ रियलिटी। फिर आप लिखें वो मिथ कैसे था और वो रियलिटी कैसे था। एट द एंड बेटा उसको कंक्लूड कर दें। सिंपल क्वेश्चन था, कोई उसमें वो नहीं था, लेकिन जब आप गिच मिच करके लिखते हैं ना वहां पे स्टूडेंट फंस जाता है। तो आप लोगों को तो मैंने बताया बेटा ये कीवर्ड्स हैं, इनको इस तरीके से आप लोगों ने करना है। ठीक है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझे इतना मजा आया वो क्वेश्चन देख के, और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पेपर आया था। और ये कि बस मुझे ये था कि ये जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनका तो मुझे पता था वो कर जाएंगे। टेस्ट सेशन में बाहर से बहुत स्टूडेंट्स आए हुए थे, उनका मुझे नहीं, मैं उनकी गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन इंशाल्लाह मेरे स्टूडेंट्स कर जाएंगे क्योंकि आप लोगों की बेटा सेल्फ राइटिंग बहुत करवाई जाती है। ठीक है, आपको हर तरीके से एक क्वेश्चन को सॉल्व करना बताया जाता है कि एग्जाम में ऐसे आ जाना है तो आपने ऐसे करना है। ठीक है, तो बाहर के स्टूडेंट्स का मैं अब नहीं कह सकती जो उन्होंने टेस्ट सेशन बाहर से ज्वाइन किया था, और लिटरली उनको बहुत ज़्यादा गाइड करना पड़ता है जो बाहर से स्टूडेंट आता है। और कोई क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स क्लास? अस्सलाम वालेकुम मैम।
वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी नाइला। मैम शेक्सपियर वाला भी एक क्वेश्चन आया हुआ था वुमेन के साथ ना हाँ कि वो ट्रीटमेंट, तो उसमें विंटर टेल की वुमेन का भी जिक्र आएगा या सिर्फ ओथेलो की? दोनों दोनों दोनों? शेक्सपियर की, हाँ शेक्सपियर विमेन दोनों आना था, Okay. दोनों ही आना था। और ये मेरे ख्याल में करंट नोट्स में ना लिखा हुआ है इसका आंसर, मैंने किसी गाइड के अंदर देखा